ओके। तो आज क्लास का एजेंडा है प्रोजेक्ट वर्क। जो आपका प्रोजेक्ट वर्क है उसके लिए आपको सबसे पहले एसक्यूएल आना चाहिए। तो एसक्यूएल की कमांड्स मैंने बताई थी आपको ऑलरेडी। तो लेट्स ओपन एसक्यूएल। माई एसक्यूएल का पासवर्ड जब आप इंस्टॉल करोगे तो उसी टाइम पे आपको पूछेगा कि व्हाट यू वांट टू सेव द पासवर्ड। उसी से ओपन होगा। तो याद रखना अपना माई एसक्यूएल का पासवर्ड इंस्टॉल करते टाइम। ओके। तो माई एसक्यूएल में सबसे पहले हम डाटाबेस क्रिएट करते हैं। And in database we can create the tables. So before creating database you can also see is there any database available in your MySQL or not. तो उसके लिए कमांड है show databases। इससे जितने भी आपके डाटाबेस ऑलरेडी क्रिएट होंगे वो सारे शो हो जाएंगे। इफ यू वांट टू यूज एनी वन ऑफ देम यू कैन यूज बाय टाइपिंग यूज and then database name। Okay, either you can also create the database with any other name like create database database name। So now if you will see the show databases, if you will check it again, this database have been created। Okay, one more thing, SQL जो है आपका केस सेंसिटिव नहीं होता है। kindly reply so that ओके सर। okay, you can also turn on your cameras। SQL का क्या यूज है, जैसे बैक एंड पे जो भी डाटा होता है टेबल्स की फॉर्म में सेव होता है। अभी प्रोजेक्ट के लिए आपको फ्रंट एंड भी चाहिएगा, बैक एंड भी चाहिएगा। फ्रंट एंड में आप पाइथन का यूज करोगे। पाइथन के साथ साथ आपको एक लाइब्रेरी भी इंस्टॉल करनी पड़ेगी टीक इंटर के नाम से। वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होती है। यू कैन डायरेक्टली इंपोर्ट टीक इंटर। ओके, आई विल शो हाउ यू कैन यूज दैट। बट बिफोर दैट अंडरस्टैंड द बेसिक एसक्यूएल कमांड्स। ये सारी बेसिक एसक्यूएल कमांड्स हमने ऑलरेडी लर्न की हुई हैं, बट डेमो नहीं किया था आई थिंक आपने। सो ये था शो डाटाबेस के लिए। अभी क्रिएट करेंगे हम टेबल्स। तो फॉर एग्जांपल लेट्स यूज द डाटाबेस एनी वन ऑफ देम। लाइक जो अभी अभी हमने डाटाबेस क्रिएट किया है डेमो के नाम से, लेट्स यूज दैट डाटाबेस। In this database if you want to see how many tables are there, you can write show tables। You can see there is no table available here। So you can create the table by writing create table, then table name। Here you will write the column names। It's data type। Then you can set also primary key or some other constant।
प्राइमरी की का मतलब है यू कैन यूज इट ओनली वंस। जैसे कि रोल नंबर होती है वो आपकी प्राइमरी की रोल होती है, नंबर क्यों बनाते हैं? यूनिक होती है वो बेसिकली। And primary key is something different from uniqueness. Okay, so this concept we will understand later. So अभी के लिए तो बेसिक कमांड ही सीखना जरूरी है। एंड वन मोर थिंग, एसक्यूएल में जितनी भी कमांड्स लिखेंगे हर बार सेमीकोलन होगा एट द एंड। Okay, now if you will write here show tables again, you can see one table is present, that is student. If you want to see the structure of this table, you can write DESC, means description of that table, student. So here are only two field, name and roll number, and the data type we have given is present here. After that you can also insert the data, but before insertion let's check is there any data present here. तो यहाँ पे डाटा को देखने के लिए हमें शो टेबल से डाटा कुछ भी शो नहीं होगा। there is some other query like select star from dot star from that table name. What is the table name here? Student. So there is also no data available, so you can insert the data here by writing insert इंसर्ट इन टेबल into स्टूडेंट। insert into table name. Table name is student, then values, and in bracket you will write the values. So only there are two fields present here, name and roll number. So you will write here name and roll number. So one row is inserted, you can check that row again by writing select start from. So this is the way you can insert the data. So let's insert one more data. So let's check. Mm, I write the incorrect query. Correct query is this select start from student because the table name is student. So there are two rows present here. If you want to delete any one of them, you can write the query delete from table name. And after that, you will write some condition by writing where. वेयर रोल नंबर इक्वल्स टू 2। Yes. So one row affected, it means one row is deleted. So let's check that. So you can see the data. This is the way you can write the queries in SQL. Okay, these were the basic commands. इनके अलावा भी प्रोजेक्ट में आपको कुछ ऐसी queries यूज करनी पड़ सकती हैं जो हमने अभी तक नहीं सीखी हैं. So be prepared for that. Okay, and for project you must have to learn them. बेसिकली ये जितनी कमांड्स बताई हैं मेनली तो यही यूज हो जाएंगी और इन्हीं से आपका काम चल जाएगा. ओके, नाउ लेट्स हैव ए लुक हाउ यू कैन क्रिएट योर प्रोजेक्ट. बेसिकली यू हैव टू यूज चैट जीपीटी. चैट जीपीटी की हेल्प से आप अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो. लुक हियर. आई होप यू कैन
See my screen? Is it visible to you? Yes, sir. Okay. आपने बहुत सारी लाइब्रेरीज इंपोर्ट कराई हैं और उनके मेथड्स यूज किए थे, जैसे मैथ मॉड्यूल यूज किया था, स्टैटिस्टिक्स एंड रैंडम मॉड्यूल। इसी तरीके से आपकी इंपोर्ट करके टीकिंटर नाम की लाइब्रेरी है, उसको आप यूज करके, बेसिकली इसका एडवांटेज क्या है, इससे जो आपका डाटा जो आउटपुट आता है वो जीयूआई की फॉर्म में आ जाएगा, मींस ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। एक तो डाटा जैसे सिंपली इनपुट और आउटपुट आता है पाइथन के अंदर, बट इससे क्या होगा, जीयूआई की फॉर्म में आएगा। लेट्स चेक एनी वन ऑफ द प्रोग्राम। Okay, so now look at this program. What we have done, we have import tkinter as tk। tk means जो ये tkinter है, बार बार ये पूरा ना लिखना पड़े, इसकी वजह से इसका एलाइस नेम हमने tk रख दिया। अब हर हर जगह हम इसको tk डॉट करके किसी भी मेथड को यूज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे tk डॉट tk। तो इससे क्या होगा, जो आपकी मेन विंडो है वो ओपन होती है। एक बार इसको मैं रन करके दिखाता हूँ, व्हाट विल बी द आउटपुट। लुक एट द स्क्रीन। अब तक जितने भी आउटपुट आते थे उसमें अभी तक आपने ये इस तरह का जीयूआई नहीं देखा है। एम आई करेक्ट? Yes, sir. हम्म। Yes, बट sir. इसमें क्या हो रहा है कि ये एक तरीके का जीयूआई है, जैसे आपकी एप्स होती हैं या फिर वेबसाइट्स होती हैं। सो लेट मी क्लिक हेयर, यहाँ पे कुछ क्लिक किया मैंने तो सम चेंज इज विजिबल टू यू, बटन क्लिक्ड। सो इससे क्या होगा, जो आपकी जो आप प्रोजेक्ट बनाओगे वो अच्छा दिखेगा। इट इज़ नॉट नेसेसरी, जरूरी नहीं है कि आप टिक एंटर यूज करो, बट इसके बगैर आपका प्रोजेक्ट अच्छा नहीं बनेगा। और ये आपके सिलेबस में नहीं है टिक एंटर, ओनली देयर इज कनेक्टिविटी एंड पाइथन एंड माई एसक्यूएल इज देयर। ओके, सो नाउ व्हाट आई हैव डन, लेट्स गो टू दैट विंडो ऑफ चैट जीपीटी। देर आर ऑल्सो सम डिटेल स्ट्रक्चर एंड एक्सप्लेनेशन एयर, कि मतलब कौन से क्वेरी का क्या यूज है। ओके, चैट जीपीटी में जब आप टाइप करोगे ना स्ट्रक्चर ऑफ टिक इंटर, तो उसके बाद ये सारी विंडो आएगी, इसको अच्छे से रीड कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट प्रोग्राम जो है वो भी टिक इंटर का ही है। लेट्स चेक दैट। ओके, सो दिस प्रोग्राम इज ऑल्सो सिमिलर टू द प्रीवियस वन, बट क्या डिफरेंस है, यहाँ पे दो लेबल्स हैं, लेबल वन लेबल टू, एंड देर आर टू एंट्रीज एंड देर आर फोर ग्रिड्स। लेट मी रन दिस प्रोग्राम। इसमें आप देख रहे हो कि जो ये लेबल वन और लेबल टू हैं ये क्रिएट हुए हैं, और यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हो। बेसिकली आपको आपकी जो भी प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है वो डायरेक्टली इसके अंदर डालनी है चैट जीपीटी के अंदर, और ये कोड अपने आप से जनरेट हो जाएगा। बट यू नीड टू सिंपली अंडरस्टैंड द एवरी लाइन ऑफ कोड। आपको सिर्फ समझना है एवरी लाइन ऑफ कोड, पूरा का पूरा प्रोजेक्ट लिखना नहीं है खुद से। Okay, उस, sir. हाँ, उसके बाद बात करते हैं कनेक्टिविटी की। कनेक्टिविटी का क्या यूज है, जैसे पाइथन है आपका और माई एसक्यूएल है। अब हम पाइथन से बैकएंड को एक्सेस कर सकें, इसके लिए हमें कुछ कनेक्टिविटी करनी पड़ती है, ताकि हम पाइथन में मान लो, अभी जैसे मैंने
इंसर्ट किया डाटा या फिर क्रिएट की टेबल, वो सारे काम आप पाइथन के थ्रू ही कर सकते हो विदाउट यूजिंग माई एसक्यूएल। बट वो चेंजेस सारे के सारे आपके बैक एंड वाले डाटाबेस में भी होंगे। तो उसके लिए आपको कनेक्टिविटी करनी पड़ती है। कनेक्टिविटी के लिए जैसे आपने पाइथन इंस्टॉल किया, देन यू इंस्टॉल द माई एसक्यूएल। आफ्टर दैट यू विल ऑल्सो नीड टू इंस्टॉल कनेक्टिविटी प्रोग्राम। और कनेक्टिविटी को इंस्टॉलेशन के लिए मैं आपको वीडियो भी भेज दूंगा। बट सिंपली उसके लिए आपको करना क्या होता है कनेक्टिविटी के लिए, सिंपली गो टू द सेव एज, और यहाँ से जो ये लोकेशन आती है बाय डिफॉल्ट, जहाँ भी आपका पाइथन इंस्टॉल है, इस लोकेशन को कॉपी करना है। इसके अंदर देखो ये स्क्रिप्ट्स फोल्डर है, स्क्रिप्ट्स फोल्डर के अंदर जाओ और नाउ कॉपी दैट पाथ। कॉपी करने के बाद सिंपली गो टू द कमांड प्रॉम्प्ट, you will write cmd. There are many methods to install the connectivity. Simply paste that path, but before that you have to write here cd, means हमें उस पर्टिकुलर पाथ के ऊपर जाके और हमें कनेक्टिविटी को इंस्टॉल करना है। Now write here pip install यस mysql सर। dash connector। आप डैश की जगह डॉट भी लगा सकते हो, डैश पाइथन, देन एंटर। और ये काम करने से पहले आपका इंटरनेट कनेक्शन ऑन होना चाहिए, क्योंकि दिस विल बी रिक्वायर्ड फॉर दैट। ये इंस्टॉल करेगा कुछ अपने आप से। सो मेरे सिस्टम में तो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, सो रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। यदि इंस्टॉल नहीं होगा तो सिंपली जैसे इंस्टॉल होता है वैसे ही आपका कनेक्टिविटी का प्रोग्राम इंस्टॉल हो जाएगा। After that you ओके can सर। run all the connectivity program in your computer system, means you can access all the databases of MySQL from your Python। ओके, पाइथन के अंदर भी यूज करने के लिए कनेक्टिविटी के कुछ प्रोग्राम्स होते हैं। जैसे यहाँ पे देखो इस प्रोजेक्ट में क्या किया हुआ है, लुक एट द प्रोग्राम। कनेक्शन ऑब्जेक्ट है, कनेक्शन ऑब्जेक्ट इज देयर, ओनली लुक एट दिस प्रोग्राम। What is written here? Connection equal mysql dot connector dot connect। उसके बाद host equal local host, ये हमेशा आपका सेम रहता है होस्ट। यूजर भी सेम रहता है। पासवर्ड के अंदर जो पासवर्ड आपने MySQL का बनाया हुआ है वो सेम पासवर्ड आप यहाँ पे लिखोगे, अदरवाइज एरर आएगा हर बार। ओके, जैसे मैंने अपने MySQL का पासवर्ड भी MySQL ही है। और डाटाबेस, जिस डाटाबेस के अंदर आपको काम करना है उस डाटाबेस का नाम भी आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। दीज टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी सारा कोड तो सेम ही है। मतलब आप चैट जीपीटी से पूछो या अपनी बुक में देखोगे, सुमिता अरोड़ा की 15 जो लास्ट चैप्टर है कनेक्टिविटी का, उसमें ये लाइन ऑफ कोड तो हमेशा सेम रहता है। उसके बाद एक कर्सर ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं हम, कर्सर इक्वल कॉन डॉट कर्सर। और उसके बाद जो डायरेक्टली क्वेरीज जो हम लिखते थे उसके अंदर माई एसक्यूएल के अंदर, वो हमें इस तरीके से लिखनी पड़ेंगी, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, देन यू हैव टू राइट द क्वेरी। जैसे अभी इसमें एक क्रिएट की हुई है टेबल, क्रिएट टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट। ये कमांड मैंने नहीं बताई थी। इफ नॉट एग्जिस्ट का मतलब है, मान लो ये प्रोग्राम आपने फर्स्ट टाइम रन किया तो इजीली रन हो जाएगा, बट नेक्स्ट टाइम जब भी आप रन करोगे तो एरर आएगा यदि आप ये इफ नॉट एग्जिस्ट नहीं लिखते। क्योंकि टेबल तो एक ही बार क्रिएट हो सकती है उस सेम लोकेशन पे, बार बार तो क्रिएट होगी नहीं। तो इस वजह से ये यदि इफ नॉट एग्जिस्ट है तो वो उसको क्रिएट नहीं करेगा बट एरर भी नहीं देगा। ओके सर। देन यू हैव टू क्लोज दैट कनेक्शन। तो ये तो था कनेक्टिविटी का प्रोग्राम इतना सा। उससे पहले मैंने टीक इंटर का बताया। जैसे इस प्रोजेक्ट में क्या किया हुआ है,
देखो जैसे इंपोर्ट टीक इंटर एज टीके, टीक इंटर नाम का एक लाइब्रेरी ली उसने, टीके के नाम से ले लिया। उसमें से फ्रॉम टीक इंटर इंपोर्ट मैसेज बॉक्स, जैसे हम ऑलरेडी करते थे उसके अंदर, मैथ मॉड्यूल के अंदर, कि किसी पर्टिकुलर मेथड को यूज करना है तो वी विल राइट फ्रॉम दैट मेथड, यूज दैट पर्टिकुलर मेथड। मतलब एक पर्टिकुलर लाइब्रेरी में से कोई एक मेथड यूज करना है, जैसे यहाँ पे फ्रॉम टिक एंटर इंपोर्ट मैसेज बॉक्स, तो वहां से केवल मैसेज बॉक्स को इंपोर्ट कराया है इसने। ओके। तो अभी मैंने ये जितना भी लाइन ऑफ कोड आपको शो हो रहा है, इसमें मैंने कुछ भी नहीं लिखा है, सिंपली आई विल गो टू द चैट जीपीटी, और मैंने वहां पे क्या सर्च किया है, लेट मी शो यू। Look at this statement. Write a Python program using tkinter for the project with commands of SQL. Also to create four buttons: add, delete, particular data, update and show data। मतलब आप कैसी भी टूटी फूटी इंग्लिश कुछ भी लिख सकते हो। मतलब जो आपको प्रोजेक्ट बनवाना है वो उसके समझ में आना चाहिए। जैसे आप मुझसे कुछ पूछते हो, ऐसे ही इससे भी कुछ पूछ सकते हो। उसके बाद इसने कुछ प्रोग्राम लिखा मेरे सामने, बट इस प्रोग्राम में भी क्या एरर था कि इसने जो प्रोग्राम लिखा उसमें जो कनेक्शन ऑब्जेक्ट था वो इसने एसक्यूएल लाइट लिया था, बट वी हैव टू यूज माई एसक्यूएल। माई एसक्यूएल यूज करना है तो मैंने नेक्स्ट लाइन में क्या लिख दिया, कनेक्ट विद माई एसक्यूएल, पासवर्ड इज माई एसक्यूएल विद डाटाबेस नेम्ड विजय। मतलब मैंने जो जो चीजें रिक्वायरमेंट थी मेरे अकॉर्डिंग उसको बता दिया कि पासवर्ड मेरा माई, मतलब माई एसक्यूएल के साथ कनेक्ट करना है, नॉट विद एसक्यूएल लाइट, एंड यू हैव टू यूज द डाटाबेस विद द नेम विजय, बिकॉज इस नाम से ऑलरेडी मैंने डाटाबेस क्रिएट कर रखा है। तो जो भी आप डाटाबेस क्रिएट करोगे जिस भी नाम से माई एसक्यूएल में, वो नाम आप उसको बता सकते हो ताकि वो उसके अकॉर्डिंग प्रोग्राम को चेंज कर सकता है। उसके अलावा जो भी कुछ एरर आएगा आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख के भी पूछ सकते हो, इट विल गिव द करेक्ट आंसर, जिससे आपके एरर करेक्ट हो जाएंगे। तो अभी जो ये प्रोग्राम लिखा मैंने, इसको मैं आपको रन करके दिखाता हूँ इस प्रोजेक्ट को। दिस इज द विंडो, और इसके अंदर तीन लेबल हैं, आईडी, नेम, एज, और उनके नीचे कुछ बटन्स हैं, ऐड डाटा, अपडेट डाटा, डिलीट डाटा, शो डाटा। तो इनके भी अपने अपने काम हैं। जैसे कि मैंने वन के अंदर कुछ नाम डाल दिया। सबसे पहले शो डाटा देखते हैं, शो डाटा के अंदर क्या है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले यूज किया था तो दो डाटा इंसर्ट किए थे, वो दो डाटा यहाँ पे शो हो रहे हैं। आई होप दिस इज विजिबल टू यू। वन इज राहुल विद एज 15, टू यस सर। इज विकास विद एज 20। तो आप इसके अंदर सिंपली एंटर कर सकते हो, इन डाटा को ऐड कर सकते हो। जैसे कि आईडी आपने लिखी यहाँ पे 3, डाटा हैव बीन एडेड। जब आप दोबारा से इसको शो डाटा क्लिक करते हो तो ये अपडेटेड वाली विंडो ओपन हो जाती है। उसके बाद आप इसको डिलीट भी कर सकते हो। डिलीट करने के लिए आप यहाँ पे कोई भी आईडी डाल दो, आपने जैसे 1 डाल दी आईडी, तो 1 वाली आईडी के डाटा को ये डिलीट कर देगा। दोबारा से शो करते हो, केवल 2 और 3 वाली आईडी से हो रही हैं। ऐसे ही आप अपडेट कर सकते हो किसी भी एक को, जैसे अपडेट करना है आपको, लेकिन अपडेट पे क्लिक करने से पहले आपको क्या अपडेट करना है, 2 अपडेट करना है, और उसका नाम चेंज करना है, मान लो। अब दोबारा से शो करोगे तो वो डाटा ऑलरेडी अपडेट हो चुका है। तो इस तरीके से आप अपना प्रोजेक्ट बना सकते हो। बेसिकली ये सिर्फ डेमो था,
और इसमें आपको कुछ भी कॉपी नहीं करना, मतलब सिर्फ एक आइडिया अलग होना चाहिए। आइडिया का मतलब जैसे आप कोई भी जीएसटी रिटर्न, मान लो कोई भी लोकल शॉप है या लोकल वेंडर है, उसकी कोई रियल लाइफ प्रॉब्लम है, जैसे उसको जीएसटी के अंदर या फिर उसको बिल वगैरह में कोई दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए क्या क्या ऑप्शंस जरूरी हैं, वो सारे ऑप्शंस आप वहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, उन डाटा को ऐड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, शो कर सकते हो डाटा को। आप टिक इंटर यूज नहीं करोगे तब भी आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट माना जाएगा, लेकिन इस तरीके से जीयूआई की फॉर्म में जब डाटा दिखता है तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, जिससे कि आपके प्रोजेक्ट में फुल मार्क्स मिल जाएंगे। और जो एक्सटर्नल भी आता है वो केवल आपसे इतना ही पूछता है कि टिक इंटर का क्या यूज है, जो प्रोजेक्ट आपने बनाया है खुद से बनाया है नहीं बनाया है, चैट जीपीटी की हेल्प कितनी ली है, तो उसमें आप बता सकते हो वी हैव यूज्ड द चैट जीपीटी। कोई डाउट है किसी को? प्रोजेक्ट बनाने में बन जाएगा प्रोजेक्ट। सर टॉपिक बताओ ना, और जैसे आपने जीएसटी वाला बताया, इसके हाँ, अलावा टॉपिक कोई भी ले सकते हो ना आप, आइडियाज तो आपके खुद के होंगे। और दो के मतलब ग्रुप में जैसे दो के एग्जांपल दो सर। अच्छा। जैसे मान लो अभी स्कूल का ही ले लेते हैं, मान लो स्कूल में ही कोई प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि फीस फी सबमिशन करवाते हैं हम, है ना, जैसे पेरेंट्स आते हैं फी सबमिट कराते हैं, तो फी सबमिट कराते टाइम डायरेक्टली पेरेंट्स आके पूछते हैं हाउ मच अमाउंट इज पेंडिंग, कितना फी का अमाउंट पेंडिंग है, तो वो डायरेक्टली एंटर करेगा एडमिशन नंबर, और एडमिशन नंबर एंटर करते ही सारा का सारा डिटेल और वो सारी चीजें आ जाएं उसके सामने, इस तरीके से। ओके सर। हाँ, तो इस तरीके से आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, स्कूल का दिया मैंने, शॉप का दिया, कोई कंपनी हो सकती है, या फिर मान लो कोई एनजीओ वगैरह है तो एनजीओ वगैरह का कोई डाटा हो सकता है। ठीक है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड कुछ इशू हैं तो उन इशू को कैसे दूर कर सकते हैं, जैसे ट्रीज वगैरह हैं, तो उन ट्रीज का मान लो ऑनलाइन करना है कि भाई कितने ट्रीज हैं, उनका डाटा है, तो मतलब बहुत सारे हो सकते हैं एग्जाम्पल, आप सर्च कर सकते हो कहीं पे भी, गूगल पे या फिर कहीं पे भी। बेसिकली जो आइडिया है वो भी चलो सेम भी हो सकता है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि आपने कहीं से पुराना किसी और दूसरे का प्रोजेक्ट एज इट इज कॉपी कर दिया। प्रोजेक्ट आपको खुद ही कंप्लीट करना है। एनी अदर डाउट? डाउट है किसी को या बन जाएगा प्रोजेक्ट? डू आई नीड टू टेक एनी अदर क्लास? नो सर। रिया, दिया, आर यू देयर? यस सर। ओके, तो इसकी मैंने रिकॉर्डिंग भी की हुई है, तो आपको चाहिए तो मैं यूट्यूब पे डाल के आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा। और कोई डाउट होता है प्रोजेक्ट बनाते टाइम, मान लो यस सर, कोई भेज दें आप। कोई क्वेरी समझ नहीं आती, या फिर कोई भी किसी भी कोड में कोई एरर आ रहा है, तो आप पूछ सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। सो आई थिंक वी कैन एंड द क्लास नाउ। एनी डाउट? नो सर। ओके। सर। नो सर। एंड वन मोर थिंग, जो प्रोजेक्ट है आपका कंप्लीट करना ज़रूरी है जून में, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है,
और ये जो प्रोजेक्ट है इसमें ऑब्वियसली आपको पता है कि इतनी आसानी से तो बनेगा नहीं, क्योंकि एरर्स आने वाले हैं और उन एरर्स को डीबग करना, क्या कोड में क्या एरर है और वो सारे काम करने। तो वो सारा जो भी काम है प्रोजेक्ट का जून जून में अपना कंप्लीट कर लो, ताकि बाद में जो टाइम है वो आप यूटिलाइज कर सको अपनी मार्क्स गेन करने पे। जितने भी ये क्वेरीज हैं और ये जो भी कनेक्टिविटी के प्रोग्राम्स हैं, ये आपके हर बार आते हैं आपके एग्जाम में। तो यदि आप खुद से लर्न करके सीखते हो तो ज़्यादा अच्छे से सीख पाओगे। मैं आपके साथ लिंक भी शेयर कर दूंगा वीडियोस के, जो वीडियोस आप देख सकते हो। ओके, सो लेट्स एंड द क्लास नाउ। ओके सर।